Hello everyone. I warmly welcome you back to the Rafael BBA Digital Learning. I am Professor Ajay Shukla, and we already have discussed the other core concepts of marketing earlier, like need, want, demand, value, cost, satisfaction, as well as targeting, segmenting, and positioning, and some other core concepts. So, remaining core concepts, let's now try to understand what the core concepts are there. And before proceeding further, I'll tell you about this topic especially. Try to learn very short answers and try to just learn about the concepts of each and every element or the topic. Right. There may not be a long question, but core concepts. So out of that, so many core concepts, you can write few. Uh, the other, let's proceed with the other core concept. Into that, seventh one is offerings and brands. These are the two different things merged together because both of them are having the same perspective. Companies address to the customer's need by putting forth a value proposition, यानी कि combination with their value proposition. क्या आपकी ज़रूरत है, उसके सामने आपको कितना वैल्यू मिल रहा है और क्या उनकी ऑफर आपको सेट हो भी रही है या नहीं, आपको सुटेबल है कि नहीं, आप कन्विंस हो पा रहे हो कि नहीं एज ए कस्टमर. A set of benefits that satisfy those needs. The intangible value proposition made physical by an offering, which can be combination of product, services, information and experiences. For an example, if you are purchasing an AC, then if the seller gives you an offer that you will get a free installation, that is the offer made by the seller. So ultimately they combine or merge it together as an offer. So that might be probably a marketing viewpoint. This is the core concept. You made a very good offer. And another one is a brand. So brand is an offering from a known source. Let me tell you the definition about the brand. I do not mention here, but brand is a name, term, sign, symbol or a design that the product that can be differentiate from one seller to another. That is a particularly a brand जो है वो किसी और कॉम्पिटिटर से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को कितना यूनिक बनाता है, वो क्या हटके हैं, वो बात यहाँ पर ब्रांड में हमेशा ही सीखी जाती है और आपको उसी हिसाब से अपना ब्रांडिंग करना चाहिए. अब ब्रांड नेम, यहाँ पर एक एग्जांपल है जो मैकडोनाल्ड्स का है. A brand name such as McDonald's carries many association in people's mind. अगर नाम लेते ही देखिए आपके मन में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है सिर्फ नाम लेने से कि क्या क्या चीज़ें हैं वो. मेकअप इट्स इमेज, इस हैमबर्गर्स यानी कि प्रोडक्ट्स, इस क्लीनलीनेस एंड देयर सर्विसेज और इवन कन्वीनियंस और कर्टियस सर्विसेज. आप कितना वार्मली वेलकम करते हैं, कितना अच्छे से बिहेवियर करते हैं आप अपने कस्टमर के साथ. एंड गोल्डन आर्चीज, ऑल द कंपनीज ट्राई टू बिल्ड अ गुड ब्रांड इमेज with a many strong, favorable and unique brand association as possible. जितना हो सके कंपनी अपनी ब्रांड को स्ट्रांग बनाने की ही कोशिश करती है. दूसरा एंड आखिरी जो कोर कंसेप्ट है वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट. ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर ये एनवायरनमेंट है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है. एक तो है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल, यानी कि कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल. वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द टास्क एनवायरनमेंट, यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो आप समझ चुके होंगे, आप इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं. तो यहाँ पर टास्क एनवायरनमेंट एंड द ब्रॉड एनवायरनमेंट. The task environment include the actors engaged in the producing, distributing and promoting the offering. यानी कि वो लोग यहाँ पर टास्क एनवायरनमेंट में हो सकते हैं जो कि प्राइमरीली आपके साथ एंगेज है, या तो फिर वो प्रोडक्शन में या तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो मदद करते हैं या तो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करने में जो मदद करते हैं, वो आपके टास्क एनवायरनमेंट के एक्टर्स है, यानी कि वो पीपल हु आर इन्वॉल्विंग इन योर मार्केटिंग चैनल. दीज आर द कंपनी सप्लायर्स. देखो नाम लिखे यहाँ पर, या तो सप्लायर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, डीलर्स भी है, वो टास्क एनवायरनमेंट में है. एंड द टारगेट कस्टमर्स. द सप्लायर ग्रुप आर मटेरियल सप्लायर. सप्लायर में भी देखिए कौन कौन से होते हैं, एक तो मटेरियल सप्लायर होते हैं और सर्विस सप्लायर्स भी हो सकते हैं, सच एज मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज.
transportation companies and telecommunication companies. These are the examples. These are the examples of task environment in which they are in the supplier group. They are helping you to reach your service or product to the end user. Banking and insurance company, etc. Distributors and dealers include agents and brokers, manufacturer representatives and others who facilitate finding and selling the customers. कस्टमर को ढूंढ के उनको जो सेल करने में मदद करते हैं, they people are engaged and they are in the task environment. Now let's try to understand what is broad environment. I think you already might be aware about this topic earlier, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो आपने उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो दीज आर द 6 कंपोनेंट्स. कौन कौन से? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा इसके बारे में कुछ आपको समझाने की जरूरत है, फिर भी आपको मैं कोई ना कोई मटेरियल या उसकी मदद से आपको समझा दूंगा कि ये सारे जो 6 कंपोनेंट्स है, और पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट एज वेल, these are affected to the marketing decision. You must decide and what kind of the combination you are targeting. Marketers must pay close attention to the trends. अभी क्या चल रहा है मार्केट में, trends and the developments in these, and adjust their marketing strategies as needed. जैसी ज़रूरत पड़ती है आप उस कॉम्बिनेशन में अच्छे से सोच समझ के आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उस एरिया में क्या है. फॉर एग्जांपल अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात का डेमोग्राफिक अलग है, और गुजरात का जो एजुकेशन है वो मतलब एजुकेशन लेवल शायद वो किसी और स्टेट या उससे अलग हो सकता है. लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो अलग हो सकता है. उनका डेमोग्राफिक देखें, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट देखें, या तो नेचुरल एलिमेंट देखें, या तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट देखें. इन हर चीज में वो अलग होता है. तो यानी कि उसको देख के ही आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को फॉर्म करना चाहिए. न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इमर्जिंग दैट अवेट द राइट मार्केटिंग सेवी एंड इंजेन्युइटी. ओके, तो प्लीज रिमेंबर it well and try to understand the concept in brief only. All right, thank you so much.